difficult letters. Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. You may call us for the best OET coaching, and for YouTube followers, this is a very easy letter. But again, you can learn a lot of things from this letter because it's an easy one. If I study it from the last, so we have to write the letter to the community care manager. Why do we need to write the letter? Purpose is that we need a social worker who can determine the best community services to help Mr. Brown in taking care of his wife at home or other alternative. The thing is simple, purpose is simple. That means we want community care manager to arrange a social worker who can determine the best community services which can help Mr. Brown in taking care of his wife at home or other alternative. Means if he thinks about shifting his wife to nursing home or he wants to keep his wife at home, then she should get the best care. She should get the best care, and Mr. Brown needs help in taking care of his wife. So we need a social worker who can determine the best community services. Wife ko hua kya hai? Wife is having Alzheimer's disease and symptoms became 3-4 years ago. Now she is becoming, his wife's condition is deteriorating. Her memory loss is becoming severe. She is unable to remember basic information. General medical condition is deteriorating. Verbally, she is aggressive. That means her condition is overall deteriorating. That is why he is struggling to cope up with his wife's condition. That is why I always say in OET, do not make your mind to write in one way. कभी कभी हम कहते हैं ना, this is the only purpose. बट अगर आप पर्पस को अच्छे से लिखना चाहो फर्स्ट पैराग्राफ में, कि एग्जामिनर आपको आने वाले पैराग्राफ्स में आपकी चेकिंग को स्ट्रिक्ट ना करे, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ को जितना अच्छे से लिखोगे, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, वही पैराग्राफ आपको पास होने में हेल्प करता है. अब देखो, जो मुझे स्टोरी समझ आई मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ प्लीज. तो ये मैंने लास्ट पैराग्राफ पहले ही बना दिया था, आप सबको मैं पढ़ा रहा था, लेकिन जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हम ये सब पढ़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं. आप अभी फर्स्ट पैराग्राफ देखो, अब मैंने आपको स्टोरी बता दिया है. तो अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ में पूरी स्टोरी लिखना चाहता हूं अच्छे से. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस ब्राउन. आई वांट टू राइट द बेस्ट. हु इज अ नोन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज, या हु वाज डायग्नोज्ड विद. दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं. हु इज अ नोन केस ऑफ या हु वाज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर डिजीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 4 years ago. Now her simple, now main point, her condition is deteriorating. The word that is given to you, same, use the same word. Why to make it complex? Now her condition is deteriorating and hence, आप ऐसा भी लिख सकते हो, and hence word भी use कर सकते हो, and hence या फिर and as a result Mr. Brown is unable to cope with her condition. What I want to say primarily is that Mrs. Brown, who was diagnosed with Alzheimer's, now her condition is deteriorating, and as a result, Mr. Brown is unable to cope up with her condition. अब अगर आप इसको अच्छा लिखना चाहते हो, cope up with his wife's condition, ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, सेफ हो जाता है. There is nothing wrong, पर हम ये बात कर रहे हैं ना, तो as a result, Mr. Brown is unable to cope up with his wife's condition. Therefore, it is advised to you. कम्युनिटी केयर मैनेजर को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. अब इसी लेटर को अगर आप कहो ये एडवाइजरी लेटर है, तो अगर एडवाइजरी लेटर है तो आपको एडवाइज वर्ड यूज करना है, नहीं तो आप मैनेजर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, एडवाइस भी कर सकते हो. Therefore, it is advised to you to arrange. अगर मैनेजर है, चलो हम रिक्वेस्ट ही कर लेते हैं. It is requested. अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज होते हो तो ऐसे वर्ड्स को मत यूज करो, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा. Therefore, it is requested to you to arrange a social worker who can. फर्स्ट पैराग्राफ में गलती नहीं करनी. अब मैं आपको बेस्ट चीज बता रहा हूं, मैंने कहा है ना, दिस इज एन इजी लेटर बट यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग. इट इज रिक्वेस्टेड टू यू हु कैन डिटरमिन द बेस्ट कम्युनिटी सर्विसेज फॉर हर. बस ये बाद में लिख देना, उसके हस्बैंड को दिक्कत आ रही है या ये, या फॉर हर
so as to help her husband in coping up. अब ये मेरी नेचुरल इंग्लिश है, अगर मैं ये और लिख देता हूँ तो और अच्छा हो जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। मैंने ये बता दिया मिस्टर ब्राउन उसकी कंडीशन का ध्यान नहीं रख पा रहा है, इसलिए आप एक सोशल वर्कर दे दो हु कैन डिटरमिन द बेस्ट कम्युनिटी सर्विसेज फॉर हर। बस वैसे तो यहाँ पे भी लेटर खत्म हो गया। अब वो अगर आप कहोगे सर यहाँ पे ये तो आया नहीं, उसका वाई उसका हस्बैंड को फायदा है, उसके हस्बैंड को फायदा है ये पता लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं कर पा रहा है कोप अप। तो ये यहीं से पता लग गया हस्बैंड कोप अप नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी वाइफ को बेस्ट कम्युनिटी सर्विसेज चाहिए। सो बाकी जो बातें होती है वो आप लास्ट में कर सकते हो। नाउ दिस इज ओईटी। अब सिंपल सिंपल मिसेस ब्राउन हैड सीवीए। अब सिंपल सिंपल चलो, हैड सीवीए 4 years ago and is a known case of सिंपल अल्जाइमर डिजीज। नॉन केस ऑफ, अब देखो अच्छा कैसे लिखते हैं, नॉन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज एज वेल। आपको ओईटी में चाहे जितना मर्जी आपका क्वेश्चन पेपर मुश्किल आए, एट द एंड ऑफ द डे आपका लेटर इतना ही सिंपल होगा, तो प्लीज इस आसान लेटर से सब कुछ सीख लो। मिसेस ब्राउन हैड सीवीए फॉर एंड इज नॉन केस ऑफ अल्जाइमर एज वेल। हर सिम्टम्स बिगिन, अब एक्सप्लेनेशन देते रहो जो भी आपको एक्सप्लेनेशन जो आपकी रहेगी। हर सिम्टम्स बिगिन 4 years ago, 3-4 years ago and currently हर कंडीशन, अब पहले उसकी कंडीशन की बताओ, हर कंडीशन इज डिटीरियोरेटिंग। अब उस कंडीशन को एक्सप्लेन करो, ऊपर नीचे करना सीखो पैराग्राफ को, जो पहले लिखने का मन करता है समझो पहले क्या लिखना है। पहले यही बताएंगे ना कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है, फिर बताओगे हर मेमोरी लॉस इज बिकमिंग सिवियर, जो भी दिया होगा, हर मेमोरी लॉस इज बिकमिंग सिवियर एंड फिजिकली ऑल्सो शी इज बिकमिंग अग्रेसिव। तो मैंने क्या लिखा कि वो हो रहा है और फिजिकली भी वो अग्रेसिव हो रही है। और इसके अलावा देखते हैं क्या पॉइंट्स दिए हुए थे। लेट्स गो टू द लेटर इटसेल्फ, let's see what are the other points those were given। बिल्कुल again whether you are a doctor, you are a nurse, you are a dentist, doesn't matter, please write OET in the simple। हर जनरल मेडिकल कंडीशन ये लिख दिया है, memory loss, unable to remember basic and verbally aggressive, physically भी हो रही है, incontinence of urine, wakes up during night। so again तो इस बात को भी अगर मुझे लिखना है, she has, so I'm just gonna copy paste here। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगेगा, गंदा सा लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पॉइंट्स गैदर करना चाहता हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉरी कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे था यहाँ पे थे हम, शी इज ऑल्सो बिकमिंग अग्रेसिव, तो अब मुझे अग्रेसिव के बाद वाले वर्ड्स को मैं खाली कर देता हूँ। ये सॉरी, शी इज बिकमिंग अग्रेसिव। ओके, just a second, I would like to make it as good as possible for you guys so that you can say it। yeah, so यहाँ पे हम verbally aggressive, so मुझे लिखना है continence of urine, wakes often during night, difficult to assess। चलो, she is also having, देखो कितना सिंपल, also को शुरू में मत लगाओ, she is also having incontinence of urine and often wakes during night। कितना आराम से चल रहा है देखो। इसके अलावा फर्दर इट इज, अब देखो ये मुश्किल वर्ड था, फिर डिफिकल्ट हमेशा इट इज के साथ आता है। फर्दर इट इज डिफिकल्ट, बस आप इट इज डालते बाकी लाइन तैयार है। इट इज डिफिकल्ट टू असेस हर ड्यू टू हर हाइपर एक्टिविटी। अगेन प्लीज राइट एज गुड एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ दिस इज द लेटर दैट वी वर अबाउट टू राइट। अब ये वाली लिव्स विद हर हस्बैंड, ये तो आ ही चुका है, तो हस्बैंड के साथ रहते हुए यहीं से पता लग जाता है। सो हस्बैंड स्ट्रगलिंग टू ग्रो। अब देखो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा डालना है एज अ रिजल्ट, पर एज अ रिजल्ट तो मैं पहले यूज कर चुका हूँ, तो आई विल शफल द वर्ड, आई विल से कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ शुरू करूंगा कॉन्सिक्वेंटली। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए ना, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ कनेक्ट हो गया, यही पॉइंट्स है। हर हस्बैंड इज अनेबल टू कॉप विद हर कंडीशन, ऐसे गो स्लो बाय स्लो, and is often tearful and frustrated at deterioration in his wife's condition। बिल्कुल सेम लाइन। he fears for her safety, बिल्कुल सेम लाइन, that is what OET is, make simple lines simple। he fears, H capital, sorry, he fears for her safety and feels impact on their social life, same line again। he reports
being very tired, same line. And there is no family nearby. अब ओवर एक्सप्लेनेशन में मत जाओ, उसके बच्चे उसके पास नहीं है बस, एंड देयर इज नो फैमिली नियर बाय, यहीं पे कवर हो गया पॉइंट। इससे आपका वर्ड काउंट नहीं बढ़ेगा जब आपका लेटर बड़ा होगा। नाउ आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आओगे। अब देखो ऑलमोस्ट आपका लेटर तैयार है। वर्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So if I say 15 16 words in one line, so that makes around 20 + 20 40 और 45 वर्ड्स हैं फर्स्ट में। ऐसे ही 45 वर्ड्स हैं सेकंड में। ऑलमोस्ट 90-100 वर्ड्स यहाँ पे पूरे हो गए हैं। देन यहाँ पे है ऑलमोस्ट लाइक मे बी अगर इसको पूरा लिखता तो इट वुड बी अराउंड 40 वर्ड्स एज वेल। सो 90 या 100 + 40 140 बाकी वर्ड्स यहाँ पे आ गए। सो देयर इज नथिंग, दिस इज ओईटी। इतना सिंपल, इतना आसान, और देयर इज नो पॉइंट। अगर आप सारा वर्ड पक्का सारे पॉइंट्स लिखोगे तो ये मतलब जितना है इन्हीं को जब सारे ये वर्ड लिखूंगा, इज ऑफन टेयरफुल एंड सब कुछ लिखेंगे तो आराम से 200 वर्ड्स आपके एग्जैक्ट पूरे हो जाएंगे। तभी अब सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है कि आपने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया। प्लीज जो ये है, आप मैंने स्टोरी को मिक्स किया, आपने बेसिक्स को फॉलो किया। इसमें मुझे लगा कि पहले मैं यही बता देता हूँ कि वो कंडीशन खराब हो रही है, फिर मैंने ये सोचा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट लिख दूंगा हर हस्बैंड इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हर, ताकि लास्ट पैरा साफ साफ आ जाए कि therefore it is requested to you for urgent assessment by the social worker to determine, ताकि मैं इस पॉइंट को मैच कर सकूं। तो मुझे पता था ये पॉइंट जो मैच कर रहा है वो वाइफ की कंडीशन के साथ तो कर रहा है, पर मेजर पॉइंट ये है कि हस्बैंड कॉप अप नहीं कर पा रहा। इसीलिए जब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ भी लिखा था तो मैंने इस पॉइंट को इंपॉर्टेंस दी कि हस्बैंड कॉप अप नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमें बाहर से यानी कि आपकी हेल्प चाहिए। सो दैट इज हाउ आई क्रिएटेड दिस लेटर, बाय अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज कब हो रही है। अगर आप बाय चांस ऊपर नीचे भी कर देते हो, वाइफ की बात पहले लिख देते हो, और सॉरी हस्बैंड की वाइफ बात पहले लिख देते हो और वाइफ की बाद में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लगा कि कॉन्सिक्वेंटली हस्बैंड कोई फैमिली नियर बाय नहीं है। अब मैं यहाँ पे कल लगाऊं देयरफॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, तो बहुत अच्छा लगेगा। देयरफॉर इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज अ सोशल वर्कर। क्यों? क्योंकि हस्बैंड कॉप अप नहीं कर पा रहे और बहुत परेशान है। वैसे अगर इस पैराग्राफ को मैं ऊपर नीचे भी कर दूं, मतलब इसको मैं यहाँ पे ले आऊं, मिसेस ब्राउन, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली वर्ड नहीं आएगा, बस फिर यहाँ पे आएगा मिसेस ब्राउन लिव्स विद हर हस्बैंड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लेटर में ये मैटर नहीं कर रहा कि मैं ऊपर नीचे क्या लिखूं। लिव्स विद हर हस्बैंड, मिसेस ब्राउन लिव्स विद हर husband and he is unable to take care of her. The only problem in writing in this thing, अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि वो कोप अप क्यों नहीं कर पा रहा है। आप समझो प्लीज, ये कोप अप क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सब हो रहा है। इसीलिए तो मैंने इसको हटा के यहाँ से, प्लीज समझो। अब देखो लेटर कितना ऑर्गेनाइज लगता है, इसी को तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये लेटर ज्यादा मीनिंगफुल है। अब ये यहाँ पे आ रहा है देयरफॉर यानी कि कॉन्सिक्वेंटली, इसीलिए ये बेटर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली हर हस्बैंड इज अनेबल टू टेक। आप प्लीज समझो कि पहले वो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है, दैट इज व्हाई ही इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हर, इसीलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। सो दैट इज हाउ अ परफेक्ट लेटर ऑफ ओईटी इज क्रिएटेड। और यही फर्क होता है। आप इस पैराग्राफ को ऐसे कर दो, इसको यहां से उठा के यहां रख दो, आप पास हो जाओगे, आपको 320 मिल जाएगा। आप सोचोगे यार मैंने इतना बढ़िया लिखा था, मेरे को पता नहीं यार 450 कैसे आता होगा। 450 ऐसे ही आता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि जब आपने ऑर्गेनाइज किया, तो आप अगर 400 से ऊपर लेने की सोच रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच पॉइंट्स विल कम फर्स्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओवर एक्सप्लेन, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करो, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये छोटी छोटी चीजें, ताकि कम्बरसम ना हो आपका लेटर, एक फ्लुएंट लेटर बने। दैट इज हाउ यू विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you very much for your patient hearing and watching our videos. Subscribe our channel if you have not. Thank you very much.